Dear students, in this video we are going to discuss our first chapter, that is his first flight, written by Liam O'Flaherty. Obviously I will not going to discuss or read the full text for you. I will only be discussing with you the summary and little bit about the writer and the theme only. Okay, first start with the writer's introduction. Liam O'Flaherty was a keen observer of sea life, and he believed that man has a lot to learn from nature. He has given a humane touch to the seagull's plight so that the reader is reminded of the nervousness he too might experience before doing something new. Let's talk about the theme of this chapter. His first flight highlights the importance of independence, self belief, and confidence, and the need for motivation to attain goals. Necessity is always the mother of invention, but it sometimes needs an initial spark from outside. Keep in mind that this story is also a metaphorical assertion that everyone needs to be independent even while staying involved in family life. आप सबको अपना अपना रोल जो है वो प्ले करना पड़ेगा, ऑल दो आप अपनी फैमिली में जो है वो रह रही हैं. बट द जॉय ऑफ इंडिपेंडेंस इज़ नॉट मेंट फॉर कॉवर्ड्स. From an educator's point of view, his first flight shows how to tactfully impart motivation. The parents of the seagull had tried to threaten him in different ways, but to no avail. The mother knew well that the trick was to arouse his need, and she eventually lures him out with food, and to his momentary horror and then great joy. Okay, now let's talk about the summary of this poem. So I will be only discussing the summary of this poem. uh, his first flight by Liam O'Flaherty is a true parable about overcoming fears in life. आपकी लाइफ में जिस किस्म के भी फियर्स आते हैं उसको आप कैसे ओवरकम करते हो, किस तरीके से उनको टैकल करते हो, ये सारी स्टोरी के अंदर उन सब चीज़ों को जो है वो वन बाय वन डिस्कस किया गया. एवरी जर्नी ऑफ 1,000 माइल्स बिगिनस विद बट अ सिंगल स्टेप. जब तक आप कोई इनिशियल स्टेप, कोई फर्स्ट स्टेप नहीं लेते, तब तक जो है वो आपकी जर्नी स्टार्ट नहीं होती, लाइफ जो है वो आगे नहीं बढ़ती. तो लाइफ को आगे बढ़ने के लिए आपको कोई ना कोई फर्स्ट स्टेप जो है वो एक हार्ड स्टेप जो है वो लेना पड़ता है. बट दैट सिंगल स्टेप इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट वन टू मेक. conquer the fear and venture forth, and we realize that we were born with wings. ओके, जब तक आप फियर को ओवरकम नहीं करोगे, फियर के साथ फाइट नहीं करोगे, तब तक जो है वो आप किसी भी किस्म की जो है वो हर्डल को जो है वो क्रॉस नहीं कर सकते, किसी किस्म की भी जो है वो फतह जो है वो आपको नसीब नहीं होगी. तो इस सब के लिए ज़रूरी यही है कि आप फियर को जो है वो ओवरकम करें. ओके, लेट्स सी इस स्टोरी के अंदर, इस लेसन के अंदर जो है वो राइटर जो है वो किस तरीके से आपको आपकी जो पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, जो आपकी जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसके अंदर जितने भी जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो फियर्स आती हैं, उनको कैसे आपने ओवरकम करना है, क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या आपकी माइंडसेट होनी चाहिए, क्या आपकी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए, उसके बारे में जो डिस्कस कर रहा है वो डिस्कस करते हैं. द यंग सीगल लुक डाउन desperately at the vast expanses of sea that stretched down beneath his ledge. Obviously वो सीगल जो था वो चोटी के चट्टान के एज पे खड़ा हुआ था और probably he was looking डाउनवर्ड्स, और वो नीचे देख रहा था और अपने बाकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको फ्लाई करता हुआ वो देख रहा था. ही वॉज हंग्री, वो भूखा था. His parents had flown away along with his brothers and his little sister, leaving him alone on the rock without food. और स्टोरी ये है कि वो उसके पेरेंट्स और उसके बहन भाई जो है वो फ्लाई कर चुके थे और उसको पीछे अकेला छोड़ दिया गया था, भूखा और प्यासा. They could all fly, वो सारे फ्लाई कर सकते थे, and he could not, लेकिन वो नहीं कर सकता था. क्यों? He had tried several times to run forward to the brink of the ledge and flap his wings, but he became afraid. वो जब जब चट्टान की किनारे पे आता था, अपने परों की मदद से जो है वो उड़ने की कोशिश करता था, लेकिन जो है वो फियर जो है उसके ऊपर गालिब आ जाता था, खौफतारी हो जाता था. ही बिकम्स एफ्रेड, और उसके बाद जो है वो डेयर नहीं करता था कि वो भी क्लिफ से, उस चट्टान से जंप करे और बाकी अपने फैमिली मेम्बर्स की तरह फ्लाई करे. He had tried several times to run forward to the brink of the ledge and flap his wings, but he became afraid.
he was certain that his wings would not support him. Obviously आपको भी समटाइम्स फील होता है कि यू कैन नॉट डू दैट, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप इस कैलिबर के नहीं हो, आप ये टैलेंट नहीं है। लेकिन समटाइम्स आपको वो जो पहले भी हम डिस्कस कर सके हैं, वो एक हार्ड स्टेप जो है वो लाइफ में वो लेना पड़ता है, क्योंकि जब तक आप वो हार्ड स्टेप लाइफ में नहीं लोगे तब तक सक्सेस जो है वो आपके पास नहीं आएगी और आप सक्सेस को हासिल नहीं कर सकोगे। ऑब्वियसली इफ़ यू लुक बैक इनटू योर पास्ट, आप अपने माजी में देखो तो ऑब्वियसली जब आपका जो फर्स्ट डे एट इन योर स्कूल, तो उसमें भी ऑब्वियसली आपको लगता था कि आप जो है वो सिंपल जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं या मैथमेटिक्स में जो नंबर्स होती हैं वो भी आप इवन कुछ भी नहीं लिख सकोगे। लेकिन अब अगर आप देखते हो 10-15 ईयर्स के बाद, तो आप जब पीछे मुड़ के देखते हो तो ऑब्वियसली यू रियलाइज़ कि आपने बहुत बड़ी जो कामयाबी है वो बहुत स्ट्रगल के बाद, हार्ड वर्क के बाद उसको अचीव कर लिया है। तो ये सारी की सारी अचीवमेंट बच्चे ये तभी हासिल होती है कि जब आप हार्ड वर्क करते हो और कंटिन्यूस एफर्ट करते हो, तो इंशाल्लाह एक दिन आता है कि आपको जो है वो कामयाबी जो आप जो अचीव करना चाह रहे, जो टारगेट थे, जो गोल थे, वो आपको ज़रूर मिलते हैं। His parents had tried countless times to make him fly. उनके पेरेंट्स ने उसको काफ़ी जो है वो इनक्रेज किया था। जैसे हमारी लाइफ में भी हमारे पेरेंट्स, हमारे वेल विशर्स, हमारे टीचर्स, हमारे फ्रेंड्स जो है वो हमें इनक्रेज करते हैं। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही वुड नॉट मेक एन अटैम्प्ट। बट उसने ये डिसाइड कर लिया था कि मैं जो है वो एक भी अटैम्प्ट जो है वो अपनी पूरी लाइफ में नहीं करूँगा। ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक था, वो इतना ज़्यादा पेसिमिस्टिक था कि वो अटैम्प्ट ही नहीं कर रहा था। और जब तक आप कोई अटैम्प्ट ही नहीं करोगे तो आप किस तरह से किसी भी किस्म की कंसिक्वेंस या आउटकम या रिज़ल्ट को जो है वो पहले से ही वो निकाल सकते हो या इन्फर कर सकते हो ये रिज़ल्ट। लेकिन जब तक आप एफर्ट नहीं करोगे, कोई अटैम्प्ट नहीं करोगे, तो आप रिज़ल्ट भी जो है उसको अचीव नहीं कर सकते। He felt that he was going to starve to death on his ledge. Even his mother was not looking at him. तो अब वन बाय वन उसकी फैमिली मेम्बर्स ने भी जो है उसको उसकी तरफ देखना जो है वो छोड़ दिया था, उसको इम्पोर्टेंस जो है वो देनी छोड़ दी थी। सो शी वॉज टीयरिंग अ पीस ऑफ फिश विद हर बीक। सो अल्टीमेटली फिर हर मदर मेड अ प्लान, उसकी माँ ने एक प्लान बनाया। द प्लान वाज कि शी वॉज टीयरिंग अ पीस ऑफ फिश विद हर बीक। छोटी सी मछली का एक पीस, एक मछली जो है वो अपनी चोंच में लेके वो शी केम क्लोज टू हर। तो देन द साइट ऑफ फूड मैडेंड हिम। और ऑब्वियसली जब उसको भूख लगी थी, ही वाज सो हंग्री। तो जब उसने देखा कि उसकी माँ जो है वो उसके लिए एक मछली का पीस या मछली जो है वो लेके आ रही है, तो वो पागल हो गया भूख की वजह से। ही क्राइड, वो रोया एट हर बट शी जस्ट स्क्रीम्ड बैक मोकिंगली। लेकिन ऑब्वियसली फिर माँ का प्लान यही था कि बेटा जो है वो ख़ुद एफर्ट करे, ख़ुद स्ट्रगल करे और स्टेप ले, हार्ड स्टेप ले और फ्लाई करे। क्योंकि लाइफ में जो है जब तक आप ख़ुद जो है वो कोई एफर्ट नहीं करते, कोई स्ट्रगल नहीं करते, तो ऑब्वियसली आपको कोई भी जो है वो प्लेट में रख के कोई चीज़ नहीं मिलने वाली। तो माँ ने भी उसके पास लाती थी वो चीज़ें, उसको दिखाती थी, सो दैट कि बच्चे के अंदर जो है इंकरेजमेंट हो और बच्चा जो है वो एफर्ट करे और ख़ुद जो है वो फ्लाई करे और अपना शिकार, अपना हंट जो है वो खुद करे। सडनली, अचानक ही फेल्ट द जॉय सीइंग हिज मदर अप्रोचिंग हिम विद फूड। और अचानक उसको लगा कि शायद माँ जो है मेरे पास आ रही है और उसके पास जो है वो खुराक भी है, खाना भी है। बट शी हाल्टेड कीपिंग द फिश जस्ट आउट ऑफ हिज रीच। लेकिन उसकी माँ ने क्या किया, उससे थोड़ा सा दूर जो है उस वहाँ पे रुक गई और उस मछली को वहाँ पे क्या किया, गिरा दिया। मैडन बाई हंगर, भूख से वो पागल हुआ था। ही डाइव्ड एट द फिश बट हिज मदर फ्लू अपवर्ड एंड ही स्टार्टेड फॉलिंग। और वो उस चट्टान से उसने नीचे जंप कर लिया भूख की वजह से। और माँ ने क्या किया, वो ऊपर उड़ना शुरू कर दिया और बच्चा जो है वो नीचे गिरना शुरू हो गया। अ मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम बट द नेक्स्ट मोमेंट ही रियलाइज्ड दैट ही वाज फ्लाइंग। लेकिन अगले ही लम्हे ऑब्वियसली जब उसके एक एफ़र्ट जो है वो करनी पड़ गई, अब लाजमी था कि अगर आप वो इस मकाम पे एफ़र्ट नहीं करता था तो अल्टीमेटली ही विल बी डेड, तो वो मर जाता। तो उसने उसी एक टेरर की वजह से ऑटोमेटिकली एक इंस्टिंक्टिवली जो है वो उसके परों ने जो है वो मूव करना शुरू कर दिया एंड ही स्टार्टेड फ्लाइंग, और उसने उड़ना शुरू कर दिया। ही वॉज बॉर्न टू फ्लाई सो नाउ ही हैज़ रियलाइज्ड कि वो उड़ने के लिए ही बनाया गया है, उसको पैदा किया गया है। तो हर इंसान में कोई ना कोई टैलेंट होता है, उस टैलेंट को
तभी आप जो है वो पॉलिश कर सकते हो, तभी आपको वो पता लगेगा। जब तक आप उसको यूटिलाइज़ नहीं करोगे, जब तक वो हिडन रहेगा, वो यूटिलाइज़ नहीं होगा, उसको आप यूज़ नहीं करोगे, तो तब तक वो टैलेंट जो है वो आपको शो भी नहीं होगा, ना आपको फील होगा। एंड ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। सो बेसिकली जो राइटर है लियाम, वो he is a keen observer of sea life and he believed that man has a lot to learn from nature। और उसके नज़दीक he believes कि इंसान को जो है वो दुनिया से और नेचर से बहुत कुछ सीखना चाहिए, बहुत कुछ सीख सकता है। He has given definitely a humane touch to the seagull's flight so that the reader is reminded of the nervousness he too might experience before doing something new। So as obviously I have told you before कि आपने भी अपनी लाइफ में जब भी कोई हार्ड वर्क को स्ट्रगल किया होगा तो एट फर्स्ट आपको यही लगा होगा कि यू कैन नॉट डू दैट, तो आप नहीं कर सकते, यू डोंट हैव द गट्स, यू डोंट हैव द टैलेंट। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम आपने जैसे जैसे एफर्ट की, जैसे जैसे हार्ड वर्क किया, स्ट्रगल किया, यू रियलाइज कि यू कैन अचीव योर गोल्स। सो बेसिकली जो आपकी जो स्टोरी है, जो लेसन है हिज फर्स्ट फ्लाइट, इट एक्चुअली हाईलाइट्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंस, सेल्फ बिलीफ एंड कॉन्फिडेंस एंड द नीड फॉर मोटिवेशन टू अटेन गोल्स। ये सारे के सारे एलिमेंट्स आपको इस स्टोरी के अंदर जो है वो देखने को मिलेंगे। और अगर मज़ीद इसके बारे में डिस्कस किया जाए, अगर क्रिटिकली इस चैप्टर को, इस स्टोरी को एनालाइज किया जाए, तो देर आर सर्टेन थिंग्स विच आई वांट टू हाईलाइट हियर। सो दीज आर लाइक ब्रेवरी एंड कॉवर्डाइज आर द रिलेटिव टर्म्स। तो ये दोनों टर्म्स जो है ये साइड बाय साइड चलते हैं, बहादुरी और बुजदली। वन इज़ कॉवर्ड एज लॉन्ग एज फियर एनकम्पसेस हिम। यहाँ तब तक ही आप जो है वो बुजदिल हैं, आपको डर लगेगा जब तक आपने उसको अपने ऊपर हावी किया हुआ है। इन दिस स्टोरी द यंग सीगल पोजेस टू बी अ कॉवर्ड इनकारनेट। वो एक बुजदली का जो है वो एक मुजस्मा, एक मिसाल जो है वो उसने अपने आप को शो किया। हिज अदर ऑब्वियसली द एल्डर ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन, द एंटायर फैमिली मेम्बर boosted him to fly but all went in vain। boosted him to fly but he could not, वो नहीं उड़ सका। one day he mustered up his courage to fly but all went in vain and for the same he was harshly punished by his parents, जो हमने ऑलरेडी स्टोरी में डिस्कस कर दिया है। he was left all alone on the ledge starving for 24 hours। तो ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन, कितने घंटों के लिए, कितने टाइम के लिए वो वहाँ पर भूखा, इसको भी आप अंडरलाइन कीजिएगा सो दैट ये आपके ऑब्जेक्टिव पोर्शन की भी साथ साथ तैयारी होती जाए। ही वुड नॉट डेयर टू फ्लाई, वो उड़ने की मतलब हिम्मत नहीं कर रहा था, कोशिश नहीं कर रहा था। ही क्राइड विद हंगर मदर टुक फाइनल डिसीजन टू पुट बिफोर हिम बेट। एक चारा डाला, एक उसके सामने एक रखा चारा, एंड इट वर्क, और उसने वो काम कर गया। ही डाइव फॉर अ स्क्रैप ऑफ फिश, मदर वॉज हाई अप इन द स्काई एंड ही वॉज इन द ओपन एयर फॉलिंग डाउन एंड डाउन। सो बेसिकली इस स्टोरी के अंदर जो लेसन है, जो मॉरल लेसन है, या जो हम जो इन्फर करते हैं, जो एक थीम इन्फर करते हैं, वो यही है दैट वी कैन से दैट पेरेंटल एनकरेजमेंट एंड डिसिप्लिन प्ले अ ग्रेट रोल इन शेपिंग द डेस्टिनी ऑफ द यंग चिल्ड्रन। तो जब तक अच्छी आपको गाइडेंस नहीं मिलेगा, अच्छी आपको जो चीज़ें हैं और अच्छी आपको जो है वो प्लानिंग आपके पास नहीं होगी, अच्छी गाइडेंस आपको नहीं दी जाएगी सीनियर्स की तरफ से, आपके वेल विशर्स की तरफ से, तो तब तक जो है वो आपकी लाइफ में जो है वो फियर जो है वो आप उसको ओवरकम करने में उस लिहाज से इतना सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो ज़रूरी यही है कि आप अपने पेरेंट्स की भी बात सुने और अपनी टीचर्स की भी बात सुने, क्योंकि इस स्टोरी के अंदर ये सारा इसका इन द नटशेल यही इसका जो थीम है, जो ही इसका जो समरी है, जो कंटेक्स्ट जो है वो यही इन्फर कर रहा है, उससे यही इन्फर हो रहा है कि आपने अपनी लाइफ में जो है वो स्ट्रगल जो है उसको कंटिन्यू करना है, एफ़र्ट्स को जो है वो कंटिन्यू रखना है, और इसी तरह ही हार्ड वर्क और स्ट्रगल के साथ लाइफ के अंदर जो है वो आप आगे बढ़ते रहें। और जिस तरह से आप एफ़र्ट करते जाएँ
जाएंगे तो एक चीज़ आप माइंड में बैठा लें कि अल्लाह ताला कभी भी जो है वो किसी भी इंसान की किसी भी चीज़ की जो है वो जो मेहनत है उसको रायगां नहीं जाने देता। तो जितनी आप एफ़र्ट करेंगे बेटा उतना ही आप आगे ज़िंदगी में बढ़ते रहेंगे और इसी तरीके से जो है वो आप अपनी लाइफ में जो है वो अचीवमेंट्स और सक्सेस उसको हासिल करते रहेंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने कोशिश की है कि आपको स्टोरी के बारे में थोड़ा सा आपके साथ शेयर किया जाए, डिस्कस किया जाए और थीम डिस्कस की है। इसके अलावा मैंने आपके साथ इसकी समरी और थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग भी आपके साथ मैंने अपनी शेयर की है। तो आई होप आपको इस स्टोरी का जो कंटेक्स्ट है वो समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स और ऑब्जेक्टिव पोर्शन जो है वो भी शेयर करूँगा। थैंक यू।